हेलो गाइस, तो यार इस वीडियो में मैं आपको ईथर की तरफ से आने वाला 3 बड़ा अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें से पहला और सबसे धमाकेदार अपडेट ये है कि इस मंथ भाई सेल के मामले में ईथर नंबर 2 में चल रहा है। जी हाँ गाइस, 1 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक का जो वाहन डेटा है ना, उसमें ईथर ओला को पीछे करके 70% मार्केट शेयर के साथ नंबर 2 पोजीशन में फिलहाल चल रहा है। आइए पहले इसको डिटेल में देख लेते हैं, फिर बाकी 2 अपडेट के बारे में बात करेंगे। Needs to tell us, is this the Vahan data which has actually put Ola under pressure today? So the party seems to be over, and you have Ather which has emerged as number 2 now. Well, definitely. I think that was one of the biggest surprises this month, Hiral, that Ather has now jumped actually to the number 2 spot with a 17% market share for electric two-wheeler space for the month of August. Now, of course, this data is from the 1st of August to the 21st of August, so we'll have to wait for the next 9 to 10 days of how this shapes up. But it's a huge jump for the company. This is the first time where the company has actually taken the number 2 spot within the top 5 space, so it's definitely a key positive. It's also interesting that TVS has continued to maintain its market share of around 24 to 25%, with Ather coming in the number 2 spot. For Ather specifically, they have been expanding in the non-South markets because 60 to 70% of the volumes come from South India itself. So over the last 12 to 14 months, they have started expanding northwards. So Maharashtra as well as Gujarat, along with Rajasthan, are now some of the key focus areas, and with expansion of stores in new cities, we can see that growth of the Rista maker in these cities as well. So that could have led to one of the key positives in this aspect. The other interesting one was Bajaj Auto actually slipping from the number 2 position, where last month it held almost 20% market share, to the number 5 position now at just 12% market share. So essentially that does mean that we could see some revival of Bajaj in the next few days, because Ganpati will be starting from the 27th, and Bajaj has a key stronghold in the Maharashtrian space. So we could see some positive move for Bajaj over the last 10 odd days. So that'll be something to watch out for. But huge gains for Ather. On the other side, Ola Electric continues to maintain their market share at 16%, and they're the number 3rd in terms of positioning. But we could see the first month where Ola slips essentially from number 3 to number 4 because of the gains that Ather has made. So it's going to be a tight battle for the number 3 spot between Ather as well as Ola. Of course, on the contingent that Bajaj Auto comes back. But it's shaping up to be a very interesting trend for FY26 in terms of the electric two-wheeler space. देख लिया भाई, यार सिर्फ 1% का फर्क है। एंड में ओला ने अगर कोई हल्का सा भी ऑफर वगैरह चला दिया ना, तो ओला वापस से नंबर 2 में आ सकता है और एथर नंबर 3 में लुढ़क सकता है। मजा आएगा इस मंथ का फाइनल डेटा देखने में। नंबर 1 में तो खैर टीवीएस रहने ही वाला है। नंबर 2 के लिए ओला एंड एथर में जबरदस्त लड़ाई भाई होने वाला है ना। दूसरा जो एथर की तरफ से बड़ा अपडेट है ना, वो है एथर का नया EL प्लेटफॉर्म का, जिस प्लेटफॉर्म में एथर बनाने वाला है अपना अपकमिंग न्यू वेरिएंट्स, न्यू स्कूटर्स, जो कि भाई सस्ता होने वाला है। जी हाँ गाइस, 1 लाख के अंदर पकड़ के चलो आपको इस प्लेटफॉर्म में गाड़ियां देखने को मिल सकता है। एथर का फिलहाल जो प्लेटफॉर्म है ना, फुली एल्युमिनियम वाला, ये भाई थोड़ा प्रीमियम प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में एथर चाह कर भी सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं बना पा रहा है, इसलिए मार्केट का कंपटीशन को देखते हुए एथर भी अपना सस्ता वाला ईवी लॉन्च करने वाला है, जहां एथर अफोर्डेबल प्राइस में अपने कस्टमर को ईवी प्रोवाइड कर पाएगा। आई जस्ट होप कि एथर अपना क्वालिटी भी ऐसे ही मेंटेन करके रखे जैसे कि फिलहाल एथर ने मेंटेन करके रखा है। अगर ऐसा हुआ तो एथर का जो 1 लाख के अंदर वाला गाड़ियां होगा ना भाई, ये भाई मार्केट में गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। नाउ नंबर 3 जो अपडेट एथर की तरफ से आ रहा है, वो है एथर का BaaS प्लान को लेकर, BaaS, बैटरी एज एन सर्विस। जी हाँ गाइस, विदा के बाद एथर ने भी अपना बैटरी एज एन सर्विस प्लान लॉन्च कर दिया है। इसका मतलब अब आप एथर रीस्टा और एथर 450 का कोई भी गाड़ी बैटरी एज एन सर्विस मूड में ले सकते हो, बैटरी एज एन सर्विस प्लान के साथ ले सकते हो, जहां आपको इनिशियली काफी कम पेमेंट करना पड़ता है गाड़ियों का, बट इसके बाद आपको एक मंथली अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो कि शुरू होता है 1 रुपीज पर किलोमीटर से। इस बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दो, मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा और इसके पीछे का जो एग्जैक्ट मैथ है उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। नाउ गाइस, एक और अपडेट मैं आपको अपने तरफ से देने वाला हूँ कि अब आप मेरे वीडियो को लाइक के साथ साथ हाइप भी कर सकते हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो हाइप करके एक बार ट्राई जरूर करना, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।